हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। तो ये सब तब होगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, security in the contemporary world. Class 12 CBSE NCERT here. That's important. Political science here. Next point arrive here. That's important. New source of dangerous. New source of dangerous security in the contemporary world here. Note that is important point here. New source of danger, and some new source of danger have emerged about which the world is the warrior to a great extent. This include terrorism, human rights, global poverties, migration, and health epidemics. That's important here. New source of dangerous here: terrorism, human rights, global poverties, migration, and health epidemics. That's important here. Terrorism refers to the political violence that is a deliberately and indiscriminately target of civilian. That's an important point. And there are three types of human right. The first, political right here. Second here, economic and social right. And third here, right of coalition people. That's the important three rights here. Another types of insecurity in a global poverty. Rich states are getting richer, while the poor states are getting poorer. That's important here. The rich states are getting to richer and poor state is getting to the poorest. That's important. And poverty in the south has also led to the mass migration in search of a better life, especially better economic opportunity in the north. That's important, especially better economical opportunity in the north here. And the health epidemics such as HIV/AIDS, bird flu, and severe acute respiratory syndrome, SARS, are the increasing our country through the migration. And new disease is the corona. That's important here. There is the HIV/AIDS and bird flu. There is a very dangerous of as many times here. And the other acute disease here are respiratory syndrome, means SAR. SAR acute respiratory syndrome here, and increasing a country through the migration. It is important to understand that expanding the concept of security does not mean covering everything. To qualify as a security problem, a problem must share a minimum number of common criteria.
That's important here. To the qualify as a security problem, a problem must share a minimum number of common criteria. That's important here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, क्लास 12वीं CBSE NCERT राजनीति विज्ञान का जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, खतरे के नए स्रोत। यहाँ पर सारे पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये NCERT के अंतर्गत है, तो समझना काफ़ी आसान है और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ को जो टॉपिक है खतरों के नए स्रोत, यानी हमारा अगला टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्व रखता है, खतरों के नए स्रोत, किसमें? समकालीन विश्व के सुरक्षा के अंतर्गत। तो खतरे के नए नए स्रोत कौन कौन से बन सकती हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए खतरे के नए स्रोत जो सबसे प्रथम आज के समय में आया है वो है कोरोना वायरस। कहते हैं ये भी एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व को त्राही करवा चुका है और आने वाला समय में ये करवाता ही रहेगा। तो ये खतरे के नए स्रोत हैं जो अभी हमारे समक्ष भी देखने को मिला है और पूरा विश्व जो है दो चार हाथ भी कर चुका है। खतरों के नए स्रोत सामने आए हैं जिनके बारे में दुनिया काफ़ी हद तक चिंतित है और इसमें आतंकवाद भी है, मानवाधिकार है, वैश्विक गरीबी है, पलायन है और स्वास्थ्य महामारी शामिल है। ये वो है जो खतरे के नए स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। आतंकवाद सब प्रथम माना गया है क्योंकि आतंकवाद मानव निर्मित होते हैं और ये जन जन के लिए खतरा का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। मानवाधिकार का अर्थ यही होता है कि आपके क्षेत्र में ऐसे बहुत से कार्य हो रहे होते हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघन कर रहे होते हैं, तो ये भी एक विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वैश्विक गरीबी जो आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा का जो है आने वाला समय में सबब बन सकता है। अगली पॉइंट बताता है पलायन। देखिए पलायन का मतलब होता है माइग्रेशन। लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए शहरों की तरफ ये पलायन कर जाते हैं और शहरों में मनुष्य के इसके कारण जो है उस क्षेत्र की दबाव बढ़ जाता है। आपने देखा होगा शहरों में एक ही घर में कई कई व्यक्ति जो है रहते हैं जिनके कारण कई तरह की बीमारियां, कई तरह के जो है रोग होती है। तो ये आम बात हो है और ये पलायन के कारण ही हुआ है। शहरों में देखिएगा लोग रोडों किनारे जो है सोए रहते हैं, तो इस तरह की समस्या जो है बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में देखे जा सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी महामारी भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस जो है स्वास्थ्य संबंधी महामारी के अंतर्गत ही आता है। इसमें आप फ्लू भी देख सकते हो, HIV एड्स वायरस भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है जो कहीं हद तक मानव के लिए खतरा का सबब है और ये बहुत काफ़ी जो है नुकसान किसी भी देश को पहुंचा सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी महामारी भी हमारे देश में सम्मिलित है और ये भी नई खतरे के रूप में देखे जा सकते हैं। देखिए हम आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भ करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बनाता है। आतंकवाद कहते हैं बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए और आतंकवाद के कारण जो है ये मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा होते हैं और ये जानबूझकर अंधाधुंध निशाना बनाते हैं लोगों को और जनजीवन को तहस नहस करते हैं। मानवाधिकार देखा जाए तो मानवाधिकार जो खतरे के रूप में देखा जा सकता है, इसको 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला जो होगा राजनीतिक अधिकार के रूप में देखा जाएगा कि राजनीति में क्या आपको अधिकार है, उसका किस प्रकार जो है लोग दोहन करते हैं। दूसरी बात होगा आर्थिक और सामाजिक अधिकार, जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी आपको जो है बखूबी प्राप्त होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके पश्चात तीसरी पॉइंट आती है जिसमें है तीसरा प्रकार के उपनिवेशित लोगों का अधिकार, यानी देखा जाए तो भारत भी 250 साल जो है उपनिवेशिक बना और इंग्लैंड ने जो है इसको शोषण किया, तो ये भी एक तरह का जो है उपनिवेश लोगों का अधिकार भी जो है हमारा अधिकारों को खंडित करता है। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा जो है वैश्विक गरीबी है। कहते पूरे विश्व में गरीबी के चपेट में है। आज देखा जाए तो अमीर वर्ग के लोग जो है अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब वर्ग के लोग जो है गरीब बनते जा रहे हैं और ये वैश्विक स्तर पर है। आज विश्व में सबसे बड़ी चिंता का सबब बना है तो वो गरीबी बनी है, क्योंकि देखा जाए तो सारे संसाधन जो है अमीर के पास ही सिमट के रह गए हैं। गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और उसी को ही अपना जीवन यापन करते हैं। यानी देखा जाए तो आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर संसाधनों को जो है दोहन कर रहे हैं
और जितना हो सके लाभ कमाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आज सभी अमीरों के हाथों में प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है, जिनके कारण अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। और गरीब का दशा पहले भी वैसे थी और आज भी गरीबों का दशा उसी प्रकार से है। देखा जाए तो दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमानों पर प्रयास भी किया गया है। अब जनरल सी बात है, गरीबी रहता है तो गरीब देखिए कहते हैं जहाँ रोटी ना मिले वहाँ तो रहना संभव इनके लिए नहीं होता है, इसलिए वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और शहरों की बोझ बढ़ जाती है। और शहरों में ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके कारण बीमारी भी बढ़ती है। तो एक कारक के कारक दूसरा कारक यहाँ पर निर्भर करता है। तो ये बड़े पैमानों पर जो है कई क्षेत्रों के लोग जो है दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। तो इस तरह का कारण जो है कई तरह की बीमारी को निमंत्रण भी देते हैं। देखा जाए तो कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन के कारण ही हमारे देश में आया था और ये स्वाभाविक है और पूरे विश्व में माइग्रेशन के कारण ही बढ़ा। स्वास्थ्य महामारी जैसे देखा जाए तो HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और जो है गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी सांस प्रवासन के माध्यम से देशों में बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो पहले भारत में HIV का नामो निशान तक भी नहीं था, लेकिन पलायन के कारण जो है यानी माइग्रेशन के कारण भारत में HIV, एड्स जो है आज पूरे क्षेत्र में अपना घर कर चुका है। और ये जो होता है ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ये तो आपको पता भी होगा कि ये ब्लड कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसके कारण HIV, एड्स फैलता है। बर्ड फ्लू की देखा जाए तो बर्ड फ्लू सर्दियों में अधिक फैलते हैं और ये पक्षियों की बीमारी होते हैं और ये पक्षियों की बीमारी इंसानों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। देखा जाए उसके बाद तीव्र श्वसन सिंड्रोम है, ये श्वसन के प्रति जो है बीमारी है जो आज भारत के देशों में काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है माइग्रेशन के कारण ही एक दूसरे से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होती है और ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर भी पहुंचती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणाओं के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं होता है। सुरक्षा का मतलब होता है सब चीज़ों को शामिल करना नहीं होता है। देखा जाए तो सुरक्षा समस्या के रूप में अहता प्राप्त करने के लिए है एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मानदंड साझा करना चाहिए। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सारी समस्याएं हैं, ये सब नए समस्याएं हैं जो आज पूरे विश्व को चिंता में डाल रखा है। अगर इन चिंताओं को दूर ना किया जाए तो पूरा विश्व जो है फिर से झुलस सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कारण बनती है हमारे देश के लिए। कोरोना वायरस भी आया था नए बीमारियों के रूप में ही हम देख सकते हैं उसको भी, और पूरे विश्व को जो है त्राहिमाम मचा दिया था। ऐसे आने वाले समय में हमें बहुत सी बीमारी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार हमारा रहन सहन है, खान पान है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार से ये बीमारियां जो है अपनी अपनी जो है प्रकाशता पे पहुँचेगी, बार बार ये लोगों को परेशान करेगी, इसमें दो कोई राय नहीं है। और ये देश के लिए भी कल्याणकारी नहीं है और न मानव जाति के लिए है। कहते हैं आज गरीबी बढ़ रही है, कारण कहीं ना कहीं जो है सरकार की लापरवाही ही है कि गरीबों को अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं मिलते, जिनके कारण उनको छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और इन सब के सबसे बड़ा कारण बनता है शिक्षा का स्तर। कहते हैं जब शिक्षा का स्तर उच्च होता है तो बच्चे को समझ आती है, सरकारी अगर नौकरी ना मिले तो प्राइवेट करके भी अपना जीवन और अच्छा व्यवस्था के साथ जीवन जी सकता है, लेकिन जब एजुकेशन ना हो तो वही मजदूरी ही रह जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करे और इसको एजुकेशन को जो है मजबूत करे। जब तक सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देगी, ना तो इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ना ही जो है इसका कुछ उपाय होगा, क्योंकि सारी समस्या का कहीं ना कहीं शिक्षा ही कारण बनता है। और ये शायद सरकार को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम जितने भी यहाँ पर बातें पढ़ी, सबका कहीं ना कहीं सूत्रधार जो है शिक्षा है। शिक्षा उच्च रहेगी तो कहते हैं टेररिज्म भी नहीं होगा, शिक्षा उच्च रहेगी तो गरीबी भी नहीं रहेगा, शिक्षा उच्च रहेगी तो बीमारी भी नहीं रहेगा, और शिक्षा उच्च रहेगी तो माइग्रेशन भी नहीं रहेगा। सबका सलूशन है शिक्षा। अगर शिक्षा उचित प्रकार से दिया जाए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो जनरल सी बात है हम हर तरह की बीमारियों का, हर तरह की समस्याओं का सामना करना हमारे लिए आसान बन जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी शेयर कर जो है करने का विचार
बनाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं दोस्तों, विचार न करना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। जब सेव कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और कोई भी जो वीडियो डालूंगा मैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होगा। तो सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए।